There is another political party, the BJP, that is also running a campaign. Today, Mr. Amit Shah is going to be out campaigning. He is also going to go from locality to locality. अमित शाह जी दिल्ली में पदयात्रा कर रहे हैं आज। ये बड़ी वेलकम Some people will say राजनीति में ये अच्छा some people will say that their campaign is going to be focusing by their own admission and also what people are saying about their campaign on nationalism, Hindutva, which means that they will be focusing on CA, they'll be focusing on Article 370, and they will also be focusing on the Ram Mandir. The BJP has a completely different point of view. They think these issues are relevant to the people. How is it that two political parties have such a different view of what the people want? बताओ भाई क्या चाहिए? See, one second. See, hardly any people are raising their hands to tell you what exactly is it that they want. आप हाथ उठा लो। So you can see. आप माइक घुमाओ भाई, माइक घुमाओ। Look, there are about 300. जनता को क्या चाहिए? 50%. आज देश को तो दो हाथ उठा रहे, दो हाथ उठा रहे। आज देश को CA NRC चाहिए कि स्कूल, अस्पताल, रोजगार, बिजली, पानी। This is the question. Sir, काइंडली माइक घुमा दीजिए। जनता से 1 minute. माइक है किसी के पास? बोलिए। One second. हाँ बोलिए। 1 second, please. How is it that the BJP is focusing on nationalism, Hindutva? What is making them so confident that they're winning this election? And would you say रिजल्ट बता देंगे कि ऐसे वक्त में जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, ऐसे वक्त में जब पूरे देश की इकोनॉमी का बुरा हाल है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, ऐसे वक्त में CA और NRC की क्या जरूरत है? You are saying that you cannot understand when there are people with so many different problems, economic problems, why would they be bothered about Shaheen Bagh, right? No, I'm saying more than that. I'm saying more than that. You are not allowing me to speak. Article 370. But sir, in your own city today, तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए। There is a whole area where hundreds of people are sitting on the streets. You have seen protests on the streets of your own capital. The Chief Minister of Delhi has seen these protests. Large number of people are out. CA doesn't matter to these people. मैं पहले वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं, आप इसका जवाब दीजिए because sir, many people are saying. तो फिर पहले वाला क्वेश्चन पूछा क्यों था जब आंसर ही नहीं ले रहा था? Many people are saying. I only asked you, sir. You are making the entire conversation frivolous. No, I'm not. आपको क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। No, I'm making it germane to the problems that exist in Delhi. It's an administrative issue also, but you're not taking a position, Mr. Kejriwal. Let me ask you this in all honesty, please. You are saying that this issue that the BJP is raising is of no consequence to the people. Then why are they out there marching? Why is Shaheen Bagh occupied for more than a month, sir? Why are lakhs of people today finding it difficult to go from work to their home? You spend 1.5, 2 hours. Why are they putting up with this inconvenience? Some people are not even wanting to put up with this inconvenience. There is a loss of 1,000 crores because of these protests. Are those people raising non-issues? प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? Over CA? CA की क्या जरूरत थी? आप मुझे बताइए सर। आप बताइए। You ask. आप उनकी वकालत कर रहे हैं। मैं किसी की वकालत सर अब आप underhand. I'm giving you a chance to speak. I'm only asking you. BJP is saying. मैं आपको इंटरफेयर भी नहीं करूंगा, पूरी बात बताइए। Sir, please. BJP is raising issues which you say are unnecessary. मैं आपसे पूछ रहा हूं। Which you say are no relevance to the people. Yet lakhs of Delhiites are out there. मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। Why are they on the streets? They are on the streets because there is CA and NRC. Where do you stand on that? That is exactly CA और NRC की जरूरत क्या थी? मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ। Where do you? CA और NRC की जरूरत क्या थी? So अगर CA और NRC आज हटा दें, सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ सर। सुन तो लो यार। दिल्ली में 6 कैंप्स हैं। मेरे को बोल तो लेने दो। You are all ganging up against CA, लेकिन वो they will never go back on this. आप अपना स्टैंड क्लियर करेंगे कि आपने तो कहा यू अपोज दिस, बट दिल्ली में आप क्या कर सकते हैं? कुछ स्टेट्स कह रहे हैं कि हम तो इसको लागू करेंगे ही नहीं, NRC और CAA को नहीं आने देंगे, आप क्या करेंगे? एक्चुअली मेरे को ये कानून समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। तो मैं जैसे अभी 2-4 दिन पहले बुराड़ी गया था, वहाँ पे मुझे एक शख्स मिले, उनका नाम था सतीश पांडे, बिहार या यूपी से आए हैं दिल्ली। उनसे बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र है, सरकार द्वारा जारी किया गया? उन्होंने कहा नहीं। बोले मैं तो घर में पैदा हुआ था।
और उन दिनों में तो कोई प्रमाण पत्र वगैरह तो कहाँ होते थे। तो मैंने कहा आपके माँ बाप का। बोले जब मेरा ही नहीं है तो माँ बाप का कहाँ से होगा। तो मैंने कहा फिर क्या करोगे, फिर तो आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सरकार द्वारा जारी किया गया अपना प्रमाण पत्र है और अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र है। जरा हाथ खड़े कर दो। बहुत कम लोग हैं। 10 या 12 लोग हैं पूरे ऑडियंस में, और इसमें 700-800 लोग बैठे हैं, उससे ज्यादा बैठे हैं। 1000 के करीब लोग बैठे हैं। हाँ, 1000 के और करीब। 15-20 लोगों के हाथ उठे हैं। बाकी सबको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। चाहे हिंदू हो। ये एक गलत फहमी है। उन्होंने, पांडे जी ने मेरे से कहा कि सर मैं तो हिंदू हूं। तो मैंने कहा कि कानून में ये लिखा है कि जो पाकिस्तान से हिंदू आएगा उसके कागज केंद्र सरकार बनवा देगी। भारत का जो हिंदू होगा उसके पास कागज नहीं होंगे तो उसे देश छोड़ के जाना पड़ेगा। आप कब पढ़ लो कानून, अगर मैं गलत हूं तो। वो तो लेकिन तो मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था, ये इस कानून की जरूरत, पाकिस्तान के हिंदुओं से तो इतना प्यार, और हमारे देश के हिंदुओं को देश छोड़ के जाना पड़ेगा, कागज नहीं होंगे तो। ये तो इस कानून की जरूरत क्या थी? अभी नौकरी है नहीं लोगों के पास, दुकानें बंद हो रही हैं, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। हम सबको मिलके इसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि जबरदस्ती का कोई कानून लाके और पूरे देश के अंदर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है, क्या जरूरत थी इसकी? तो आप पूरा का पूरा विरोध कर रहे हैं सीएए और एनआरसी का, और हालांकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि इसका हमने कोई लिंक नहीं किया है। गृह मंत्री ने कल ये भी कहा है कि एनआरसी की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कब करेंगे? अभी कह रहे हैं, अभी बात नहीं हो रही। कब करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप तो इतनी बड़ी पत्रकार है, आपको तो पता होगा। अब उन्होंने तो मैनिफेस्टो में डाला है एनआरसी करेंगे, बोला भी है, पहले पार्लियामेंट में भी बोला है। सो वो कभी ना कभी तो करेंगे ना। वो देखिए, शब्दों के छलावे से कोई फायदा नहीं है, वाक्यों के, भाषा के छलावे से कोई फायदा नहीं है। इस कानून की इस देश को कोई ज़रूरत नहीं है। अपने देश के अंदर बहुत बेरोजगारी है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से 2 करोड़ हिंदू लाएंगे, उनको कहाँ बसाएंगे जी? अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, अपने बच्चों के लिए घर नहीं है, वहाँ से लाके 2 करोड़ लोगों को कहाँ बसाएंगे, कहाँ नौकरी देंगे, कहाँ उनको घर देंगे? अपने वालों को तो कर लो पहले, फिर ले आएंगे, बाकी दुनिया को भी ले आएंगे फिर। अरविंद जी, आपका दावा तो है कि आप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जितने भी सर्वे आते हैं उसमें आपकी पार्टी नंबर 3 पर आती है। कौन सा सर्वे? जितने भी अखबारों में सर्वे हैं। कौन सा? आपके चैनल ने जो कराया? हाँ, हमारे चैनल में वो कराया फ्रॉड था। सर्वे था।